record. So good afternoon, children. We are going to take a very important sessions on the tools related to physics, mathematical tools related to physics. Now, what is it? See, physics is actually the measurement of the physical quantities, right? So if you want to measure the physical quantities, you need the mathematical tools. So one of the important tools is the differentiation and the integrations, right? So we will be taking a series of lectures in which we will be actually doing the differentiation and the integration part in a very simple way, but very relevant to what you're going to learn it in physics, right? Okay, so let's start. So सबसे पहले हमें करना है कि what is differentiation. लेकिन differentiation समझने के पहले हमें क्या करना है? differentiation समझने से पहले हमको देखना है कि भाई इसमें functions क्या है, functions को कैसे define करेंगे, function को कैसे डिफाइन करेंगे, फंक्शन क्या होता है, ठीक है? वैसे फंक्शन तो बहुत बड़ा है मैथ्स में, लेकिन उतना सब कुछ जाने की जरूरत नहीं है. नाउ इफ देयर इज अ फिजिकल क्वांटिटी व्हिच इज y, and y is a physical quantity which is dependent on the value of x, right? Y is a physical quantity which is dependent on the x. Just a minute. Yes, ma'am. Okay, so we'll be starting with the differentiation of the functions first. What is a function? Now I have got a physical quantity, say that is y, and y is dependent on x. Whatever the way, it is dependent on the value of, say, it is x. Okay, now if that is like, say I say y is equal to 3x plus 5. So here we can say this x is called as the independent variable and this y is called as the डिपेंडेंट वेरिएबल, राइट? तो x की वैल्यू को चेंज करने पर y की वैल्यू चेंज होगी, ठीक है? सो कैसे? जब x इज इक्वल टू 0 था तो y इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू आपका 1 हो गया तो y की वैल्यू कितनी हो गई? दैट इज इक्वल टू 8. x इज इक्वल टू 2 हो गया तो y इज इक्वल टू 6 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 11. मतलब x की वैल्यू को चेंज करो तो कंपैरेटिवली क्या हो रहा है? y की वैल्यू भी चेंज होती जा रही है. तो ऐसे प्रकार का कोई भी जैसे रहेगा तो दैट इज कॉल्ड एज अ functions, right? Now it can be anything. Y is equal to sine of x, y is equal to x square, x cube plus x square plus 5x plus 3. All this, x is called as the independent function and y is called as the dependent function. Here also we can say that ki x is a independent function and y is the dependent function. So x is here the independent variable, right? So variable है जो change कर सकते हैं और उसकी value आपकी x की वैल्यू को चेंज करने पर y की वैल्यू चेंज होती है. कई बार ऐसे होता है कि हमारे पास में y की वैल्यू कांस्टेंट होती है. कांस्टेंट मतलब y is equal to 8, y is equal to 25, y is equal to minus 3 by 5. These are the values which are constant. x की वैल्यू चेंज हो सकती है लेकिन y की वैल्यू आपकी कांस्टेंट. तो ऐसे फंक्शंस को हम कांस्टेंट फंक्शंस कहते हैं. वेरिएबल आपको मालूम है जो x and y. और अगर ये 2D में लिया गया तो, और अगर 3 डायमेंशन में लिया तो आपके पास 3 वेरिएबल रहते हैं x, y and z. एक की वैल्यू को चेंज करो तो उसकी वैल्यू का असर दूसरे दोनों में भी पड़ सकता है. So this is called as the variable. Okay, now I am going to talk about the very important thing about today's class, and in today's thing we are going to learn about the differential coefficient of the function, that is differentiation. Differential coefficient of a function बोलो या फिर you will actually write this as the differentiation. यही होता है आपका differentiation, right? तो differentiation में क्या होता है? हमने x की वैल्यू को चेंज करा तो कितना y की वैल्यू में चेंज होगा? That means you change the value, rate of change in y due to change in the value of x. That is called as the differentiation, right? Now if you want to say that I want to define, say, velocity, right? So how do you define velocity? We all know velocity, that is equal to rate of change in displacement, और यहाँ y होगा when, or you can write this with respect
to the time, that is velocity. So how do you write velocity? That is change in the displacement divided by the change in the time. That is called as the velocity. Is this clear to all of you? What is velocity? Velocity is the change in the displacement with respect to the time. So change in the displacement, I write displacement as x, with respect to time I get the velocity, right? This is the example of rate of change in the value of y when we change the value of x. How do I write this? I write in x-axis I have got the time, and in the y-axis I have got the displacement. I represent it as by से कैपिटल एक्स, राइट? इसको मैं कैपिटल एक्स से रखती हूँ क्योंकि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में कंफ्यूजन ना हो. टाइम एक वेरिएबल है, टाइम हम चेंज कर रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट में फर्क आ रहा है. सो दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू the rate of change in y with respect to the value in the x. That is called as the differentiation, right? Now you can find out, suppose this is the average velocity. Now if you want to find out the instantaneous velocity, if you want to write something called as the instantaneous velocity, instant par, so in that case it will be equal to dy by dt, rate of change of displacement with respect to the time. So if you want to find out the instantaneous power, power को हमको define करना है. So what is it? Rate of change of work with respect to time. इसी वक्त, है ना, एवरेज नहीं ले रहा है, इसी वक्त. तो हम लोग क्या करेंगे, वहां पर हम डिफरेंशिएशन को लेंगे. ठीक है, ओके. तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू बताएगा. अब ज्योमेट्रिकली इसकी मीनिंग बताऊं तो क्या करोगे? तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग में हमने एक ग्राफ बनाई. दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द y axis. You can see here, and I draw a function. Say y is a value which is dependent on x. I write the function as fx. मुझे नहीं मालूम क्या है. जब मैंने इसको प्लॉट किया तो ये पिंक कलर का ऐसा बन गया. ठीक है, तो इसका ग्राफ मैंने बना लिया. तो ग्राफ बनाने के बाद आप बोलोगे कि मैम इसमें दो वैल्यूज ले लेते हैं हम लोग. एक वैल्यू मेरा जो है वो x है. एक वैल्यू क्या है, मेरा x है, और दूसरा वैल्यू उससे थोड़ा सा बड़ा यानी x प्लस डेल x. ठीक है, इसमें x की वैल्यू कितनी चेंज हो गई बच्चों? इसमें x की वैल्यू कितनी चेंज हो गई, काजल बताओ? x की वैल्यू कितनी चेंज हो गई है? यहाँ पर x प्लस डेल x है और यहाँ पर x है, तो चेंज इन द वैल्यू ऑफ x मेरा कितना आएगा? तो बोले डेल x आ जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ गया? सो दिस इज इक्वल टू से दैट इज डेल x. ओके, नाउ ये मेरी वैल्यू डेल x है, तो और यहां से यहां तक ये fx है यानी y1 है. fx का मतलब क्या होता है? ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया? x, y, और इस वैल्यू का जो कमाल है यहाँ पर y प्लस मान लो डेल y आया. तो y की वैल्यू में कितनी चेंज आई? दिस इज द वैल्यू चेंज इन द x एंड दिस इज द वैल्यू व्हिच इज चेंज इन द y. सो सपोज इफ आई वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ से tan थीटा, है ना, tan थीटा की वैल्यू कितने पे लिखोगे तुम लोग? तुम लिखोगे ये दोनों में चेंज, तो दैट इज इक्वल टू कितना आ गया? डेल y. n दोनों में चेंज, दैट इज इक्वल टू डेल x. सो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, सो दैट इज इक्वल टू चेंज इन द y divided by the change in the x. Now this is giving you the average change in y with respect to WRT with respect to the value of x. This is the average value. क्योंकि मैंने ये नहीं देखा कि कैसे चेंज हो रहा है, मैंने डायरेक्टली इसका पूरे का वैल्यू ले लिया है. So this is average value. But if you want to take the instantaneous rate of change in y with respect to x, तो इन दैट केस वी विल नॉट ड्रॉ अ कॉर्ड. देखो इसमें आपने क्या बनाया है? इसमें आपने कॉर्ड बनाया है और इसमें आपको टैंजेंट बनाया. कॉर्ड का मतलब होता है कर्व को दो पॉइंट पे काटता है. देखो सर्कल हुआ, सर्कल का कॉर्ड दो पॉइंट पे काट रहा है. सर्कल का टैंजेंट कितने पॉइंट पर काटेगा? सर्कल का जो टैंजेंट है
वो सिर्फ आपका एक पॉइंट पर काटेगा. सो दिस इज द कॉर्ड, ये मालूम है हमने बचपन से पढ़ रखा है, और इसको हम लोग बोलते हैं टैंजेंट. हमने सर्कल्स के लिए पढ़ा था, लेकिन दिस इज एप्लीकेबल फॉर any kind of the curve. It is applicable for any kind of the curve. तो यहां पर अपने पास क्या किया, हमने x की वैल्यू को छोटा 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 कर दिया. तो एकदम छोटा 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 करते करते देखो ये वाला यहां पर आ गया. ये वाली वैल्यू, ये x की वैल्यू इतनी छोटी हो गई कि इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 0 हो गया. तो उस दौरान y में कितना चेंज होगा, दैट इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू. सो हमने क्या लिखा, what is the value of dy by dx, समझिएगा, that is the change in the value of y divided by change in the value of x when limit of del x tends to 0. मतलब ये जो del x की वैल्यू बहुत ही छोटी, ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी यहाँ पर क्या बनना चाहिए, यहाँ पर कॉर्ड बना. हाँ, यहाँ पर कॉर्ड बना. जब हमने एवरेज वैल्यू लिया, इंस्टेंटेनियस वैल्यू के लिए हमें क्या लेना होगा, इंस्टेंटेनियस वैल्यू के लिए हमें टैंजेंट लेना पड़ेगा. ये क्या था हमारा, दिस इज द टैंजेंट लेना पड़ा. तो इसमें हमको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इन द y मिला विद रिस्पेक्ट टू x. ठीक है, ये तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग हो गई आपको समझाने के लिए. ठीक है, तो फिजिकल एग्जांपल्स हम ले सकते हैं. रेट ऑफ चेंज ऑफ, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था. एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बताओ, व्हाट इज एक्सेलरेशन, व्हाट इज एक्सेलरेशन. Acceleration is equal to change in the velocity with respect to change in the time, or instantaneous acceleration बोलोगे तो you will be writing dv by dt. Now if I want to write the current, करंट का फॉर्मूला क्या बताओगे, चेंज इन द चार्ज डिवाइडेड बाय चेंज इन द टाइम. ये सब सीखा हुआ है आपका, है ना. अगर मैंने बोली इंस्टेंटेनियस करंट निकालो, यानी इस वक्त वायर में कितना करंट बह रहा है, तो आप क्या लिखोगे, दैट इज इक्वल टू dq by dt. अगर इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालनी है तो डिफरेंशिएशन करोगे. इज दिस क्लियर? यहां तक का आई थिंक एवरीबडी इज क्लियर कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालना है तो हम डिफरेंशिएशन करेंगे. कोई मजे नहीं. अब चलते हैं हम लोग बेसिक डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज पर. नाउ व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट. The differentiation of constant is equal to 0. लिखना शुरू कर देंगे प्लीज. Differentiation of a constant it is equal to 0. कोई भी constant number रहेगा तो उसका differentiation 0. Second है, if you have got d by dx ना, d by dx of a constant c multiplied by another function say fx, तो कांस्टेंट को बाहर निकाल लीजिएगा और आपको डिफरेंशिएशन सिर्फ और सिर्फ फंक्शन का करना है. तीसरा रूल, अगर हमारे पास कोई फंक्शन है y विच इज दो फंक्शन का सम, या आपको डिफरेंस मिल रहा है, तो डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो क्या करना है, पहले का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, प्लस रहे तो प्लस, माइनस रहे तो माइनस, देन d by dx ऑफ अनदर फंक्शन दैट इज इक्वल टू ux. ठीक है. चौथा है कि अगर मेरे पास एक फंक्शन है, दिस इज कॉल्ड एज द प्रोडक्ट रूल. प्रोडक्ट रूल मतलब y इज इक्वल टू, एक फंक्शन है fx और दूसरा फंक्शन है मेरा gx. तो जब मैं डिफरेंशिएट करूं तो फर्स्ट फंक्शन differentiation of second plus second function into differentiation of the first. ठीक है, क्या लिखा, फर्स्ट फंक्शन. अगर मैंने फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन को और अच्छे से बता देती हूँ, u and v, ये मेरा पहला फंक्शन है और ये मेरा सेकंड फंक्शन है, तो इन दैट केस व्हाट इज dy by dx, दैट इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन u, differentiation of the second function v plus v, that is the second function, multiplied by differentiation of the first function. Right? Now this is the fourth जो फॉर्मूला है वो. ठीक है, अब आ गए हम लोग दैट इज द फिफ्थ फॉर्मूला पर. फिफ्थ फॉर्मूला में अगर मेरे पास एक फंक्शन है y दैट इज गिवन एज से fx by gx and gx 0 नहीं है, then suppose if you write this as the numerator and you write this as the denominator, अगर मुझे dy by dx करना है तो मैं क्या लिखूंगी, यहां लिखूंगी डिनोमिनेटर,
d by dx of the numerator minus numerator d by dx of the denominator the whole divided by denominator का square. सब कोई कॉपी करेंगे फटाफट, जल्दी से. Now, for a few problems, I'll be teaching you only how to apply one single formula, which is commonly used in physics, right? Okay. Now, that formula is d by dx of x to the power of n, right? D by dx of x to the power of n is equal to n x to the power of n minus 1, right? Now, this is a, yeah, anyway, wherever you want, I want you to like see this notes has to be max वाले notes ऐसे लिखना कि कभी भी मैं रेफर करने के लिए बोलूं आपको मिल जाना चाहिए क्लास के दौरान, कभी भी मिले फिजिक्स का तो उस फिजिक्स के नोटबुक में ऐसा होना चाहिए कि आपको कभी भी मिल जाना चाहिए. चलो हम लोग एकदम इजी इजी वाले क्वेश्चन इसी फॉर्मूला पर बेस्ड करेंगे, कोई और फॉर्मूला की जरूरत नहीं है. 4-5 प्रॉब्लम इसमें करेंगे, आपको एक एक्चुअल फील आएगा कि भैया हम डिफरेंशिएशन किस प्रकार से करते हैं. सो पहला सवाल एकदम सिंपल सा आपके लिए यहाँ पर है. Suppose I have got y is equal to x to the power of 3. ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, तो ये बोले लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x. तो क्या मिलेगा, dy by dx that is equal to d by dx of x cube. भैया यहाँ पर फॉर्मूला क्या बताया, x to the power of n, x to the power of n is equal to n x to the power of n minus 1. भैया यहाँ पर n कितना है, तो बोले 3 और 3 से एक कम करना है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3x का स्क्वायर, राइट? 3x का स्क्वायर, वेरी इजी, कोई दिक्कत नहीं. चलिए सेकेंड प्रॉब्लम करते हैं. y इज इक्वल टू से हमारे पास है x टू द पावर ऑफ 5 प्लस x टू द पावर ऑफ 4 प्लस 3x प्लस 1. तो हमने क्या बोला कि अगर बहुत सारी फंक्शंस एडेड है तो रूल के अनुसार हर किसी को अलग अलग डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. सो क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग with respect to x will get dy by dx that is equal to d by dx of x to the power of 5 plus d by dx of x to the power of 4 plus d by dx of 3x plus d by dx of 1. तो भैया x to the power of 5, x to the power of 5 यानी मैंने फॉर्मूला क्या बताया आपको, d by dx of x to the power of n is equal to n x to the power of n minus 1. अलीबा यहाँ पर n की वैल्यू 5 है तो पहले लिखोगी 5 और x to the power of n minus 1 यानी 5 minus 1 which is 4, राइट? प्लस यहाँ पर x to the power of 4 है तो सामने आएगा n और यहाँ पर आ जाएगा n minus 1 तो x क्यूब आ जाएगा. अच्छा अब यहाँ पर मेरे पास है 3x, तो हमने क्या रूल बताया था आपको, रूल ये बताया था कि कोई कांस्टेंट अगर फंक्शन के साथ मल्टीप्लाइड है, ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन है और वो फंक्शन के साथ मल्टीप्लाइड है, कांस्टेंट है और वो फंक्शन के साथ मल्टीप्लाइड है, तो डिफरेंशिएट करते समय क्या करना चाहिए, कांस्टेंट को बाहर निकालो, सिर्फ फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, है ना? तो कैसे किया जाए, तो यहाँ अपन लेते हैं इसको, चलो ये हो गया आपके पास 3 कॉमन आ जाएगा, dx by dx प्लस ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, कभी भी याद रखना अकेला कांस्टेंट रहेगा तो उसका डिफरेंशिएशन होता है 0. सो व्हाट इज द आंसर, 5x टू द पावर ऑफ 4 प्लस 4x टू द पावर ऑफ 3. यहाँ dx dx कट के 1 हो जाएगा तो आंसर में सिर्फ बचेगा 1. ओके, डिड यू गेट द फील, वेरी इजी क्वेश्चन. यस प्लीज ऑल ऑफ यू नोट डाउन, all of you note it down, tell me. Yes, ma'am. Yes ma'am, right? Yes, ma'am. Fine, so this is Yes, a ma'am. very easy one. So y is equal to root of x, that is can be written as x raised to the power of 1 by 2. So which I wrote it as, when I want to differentiate it with respect to x, I want to differentiate x to the power of half. तो formula है x to the power of n, n common सामने आ जाएगा, x to the power of n minus 1, n minus 1 n को सामने लाया तो half हो गया, x to the power of n minus 1 यानी half minus 1, half minus 1 यानी minus half, है ना? तो half into 1 upon root x, this is your answer, right? A very very easy questions. Now another one I want to give you is y is equal to x to the power of 3 by 2 plus x to the power of minus 1 plus 5. How will you differentiate it? Differentiating with respect to x. What did you get?
dy by dx लिखना जरूरी है, ठीक है। अगर ये नहीं लिखोगे y उतार देते कई लोग और ये लिखना भूल जाते हैं, तो ये लिखना जरूरी है ना। तो दैट इज d by dx of x raised to the power of 3 by 2 plus d by dx of x to the power of -1 plus d by dx of 5। चलो आंसर बोलते जाओ। यहाँ पर क्या आएगा, यही फॉर्मूला लगाना है ना, अभी और कोई फॉर्मूला हम नहीं लगा रहे। x to the power of n, तो यहाँ n कितना है बच्चा, n कितना है बच्चा, 3/2 वैल्यू 3/2 है और x x 3/2 -1 यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस x टू द पावर ऑफ -1, तो -1 बाहर, x टू द पावर ऑफ -1 अब ये तो कांस्टेंट है बेटा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का 0, तो अपने पास में क्या आया 3/2, 3/2 -1 तो x टू द पावर ऑफ 1/2 हो गया, प्लस यहाँ पर प्लस और यहाँ पर -1 है तो यहाँ पर -1 हो जाएगा माइनस, और यहाँ आ जाएगा x टू द पावर ऑफ -2 एंड 0। सो व्हाट इज द फाइनल आंसर डिड यू गेट? So dy by dx is equal to 3/2 है ना, x to the power of 1/2 minus 1 upon x square, which is your answer. Are you clear till this point and with me? Come on, tell me so that I can teach you the next one. One more problem. One more problem on your own. सब कोई अपने आप बनाएंगे एक प्रॉब्लम, उसके बाद में मैं नेक्स्ट स्टेप सिखाने जा रही हूँ आपको. Yes, one more problem, right? So y is equal to, that is 50x to the power of 6 minus 8x to the power of 3 by 5 plus 52. Now differentiate and give it to me answer. Fine, जल्दी से आंसर देंगे मुझे. What will be the answer? We will write dy by dx, that is equal to, यहाँ आपके पास 50 कॉमन आ जाएगा है ना, 50 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट क्या होता है, डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाता है ना. सो ये क्या हो जाएगा, d by dx of x to the power of 6 माइनस 8 बाहर है ना, माइनस है तो माइनस उतारो, प्लस है तो प्लस उतारो, देन d by dx of x to the power of 3 by 5 प्लस d by dx of 52. देखो 50 कॉमन और यहाँ क्या आ जाएगा, मैंने क्या बताया, फॉर्मूला क्या था, फिर से लिखते हैं यहाँ पर d by dx of x to the power of n, that is n x to the power of n minus 1, right? तो यहाँ पर मेरे पास n कितना था, बोले 6 है ना, n minus 1 यानी x to the power of 5 आ जाएगा, minus 8 है और n यहाँ पर 3 by 5 है तो ये 3 by 5 यहाँ आ जाएगा, x to the power of 3 by 5 minus 1 plus constant है d by dx, उसके साथ कोई फंक्शन अटैच नहीं है तो इसलिए इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0. तो आपके पास आंसर कितना मिला, 300x to the power of 5 minus 24 by 5 and x to the power of minus 2 by 5, 3 by 5 minus 1, that is equal to minus 2 by 5, and this is your answer, right? Is everybody clear till here? Yes, Say ma'am. start recording. So we can write this as, suppose product rule है, तो if it is the product of two functions, suppose we have got this is the product of the two functions, y is equal to x cube into sin x, तो मैंने कहा प्रोडक्ट रूल लगाने के लिए फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन मान लो, एक फंक्शन को पहला दूसरे को दूसरा, किसी को भी फर्स्ट किसी को भी सेकंड, राइट? रूल क्या है, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ द सेकंड प्लस the second function into differentiation of the first. This is the rule. So I have got in this x cube as the first function, sin x is the second function. So x cube d by dx of sin x plus sin x d by dx of x cube को वैसे ही उतारो, sin x का डिफरेंशिएट किया तो cos x आया और sin x into x cube का 3x square आया, and this is our answer, right? So चलो दो तीन फॉर्मूलाज और हम याद कर लेते हैं. तो इसमें मैंने आपको याद करानी है, that is derivatives of the trigonometrical functions, right? इसको हम लोग लिखेंगे और इसको भी ऑलरेडी एक बार लिख चुके, फिर से यहाँ पर लिखेंगे. Now it is d by dx of sin x, that is equal to cos x. Then you have got d by dx of cos x, which is equal to minus of sin x. Then d by dx of tan x, that is equal to secant square x. Okay, then you have got d by dx of secant x, that is equal to secant x multiplied by tan x. Then d by dx of cot x, that is minus cosec square x, and d by dx of cosec x is equal to minus cosec x into
cot x. ठीक है, ये फॉर्मूलाज को फटाफट लिख लीजिएगा. लिख लिया तो मुझे बताएं. Now this is the sixth, right? Now in sixth question, y is equal to x minus 1 into x cube minus 3. I have got this as the first function and this as the second function. So how do I write it? dy by dx is equal to, क्या बताया rule? X minus 1 the first function, then d by dx of x cube minus 3 plus I have got x cube minus 3 the second function into d by dx of the first function. बताओ रे बच्चों क्या आएगा? क्या आएगा इसके अंदर? फर्स्ट फंक्शन को वैसे ही रखा. x क्यूब माइनस 3 का डिफरेंशिएशन में क्या आएगा? x क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना आएगा? बोलो. x क्यूब का अलीबा x क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना आएगा? अलीबा x क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना आएगा? सिर्फ x क्यूब का. d by dx of x क्यूब. क्या फॉर्मूला बताया था? मैम क्या 3x 3x का स्क्वायर आएगा, है ना. तो यहाँ लिख लो 3x स्क्वायर. इसका कितना आएगा? 0 प्लस यहाँ पर x क्यूब माइनस 3 वैसी के वैसी रहेगा और d बाई डी एक्स ऑफ x माइनस 1. तो ये क्या आएगा? तो 1 का तो 0 आएगा. dx बाई डी एक्स कितना आया? 1. देखो ध्यान रखना, जहां पर भी आपके पास में dx बाई डी एक्स कट तो जाएगा, 1 आएगा. सो यहाँ पर डिफरेंशिएशन ऑफ x इज इक्वल टू 1. नाउ यू कैन सिंप्लीफाई दिस and you can write as 3x cube minus 3x square then plus x cube minus 3. So final answer is 4 times of x cube minus 3x square and then minus 3 which is your answer. Clear? Product rule किस प्रकार से करते हैं ये समझ में आया सबको? यस मैम. या प्रोडक्ट रूल किस प्रकार से करते हैं हमें आपको बताना आ गया. दिस इज हाउ आई डू द प्रोडक्ट रूल. नाउ लेट मी टेक अनदर प्रोडक्ट रूल. सो वी हैव गॉट दिस वैल्यू एज लाइक सिंपल वाला करते हैं अब ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए. y इज इक्वल टू 3x टू द पावर ऑफ 5 माइनस 3x प्लस 1 बाई x. इसको कैसे किया जाए? सब लोग करो मेरे साथ और मेरे से फास्ट. कम ऑन. श्रुति, या all of you, this is dy by dx that is equal to d by dx of 3x to the power of 5 minus d by dx of क्या आएगा? 3x into d by dx of 1 by x. बोले जितना आएगा? 3 तो कांस्टेंट, 5x to the power of 4 minus 3 कांस्टेंट. यहां आ गया आपके पास dx by dx और यहां पर आपके पास एक मिनट है, ये प्लस होना चाहिए, प्लस एंड देन यू हैव गॉट d by dx of x to the power of minus 1. राइट? तो क्या आएगा? ये आ गया आपका 15x to the power of 4 minus 3 क्योंकि dx dx कट गया. देन प्लस यहां पर आएगा x to the power of minus 1 तो minus 1 तो बाहर आ गया. देन x to the power of minus 1 minus 1. तो आंसर कितना आ गया? 15x to the power of 4 minus 3 minus of x to the power of minus 2. X to the power of minus 2. This is your answer. Clear? यस मैम. This is your answer. ma'am. It's a very 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 simple सा क्वेश्चन हमने ले लिया है. ठीक है? Okay. Now the next part, right? The next part I'm going to do. This is a question for you. I'm not going to do this. Y is equal to 5 x to the power of minus 7 multiplied by tan of x. Right? Do this. Now, word problems. आज जब जितना भी डिफरेंशिएशन सीखे ना, उस डिफरेंशिएशन के बेसिस पर हमको कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स जो फिजिक्स के प्रॉब्लम में डिफरेंशिएशन को कैसे अप्लाई करता है ये देखते हैं. देखिए, हमें पता है फिजिक्स में पहला चैप्टर होता है मोशन और मोशन में हम पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है. 9th में पढ़ लियो तुम लोग, है ना. अभी इस साल भी पढ़ना है आपको और इस साल पढ़ने के पहले मतलब अभी वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करोगे. तो वेलोसिटी को आप डिफाइन करते हो dx by dt यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ठीक. एक्सेलरेशन को कैसे डिफाइन करते हो आप? एक्सेलरेशन डिफाइन करने के लिए बोलूंगी तो आप बोलोगे आप रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम.
है ना, यही बोलोगे आप। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला आपको मालूम है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज वेलोसिटी एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज एक्सेलरेशन। ठीक है, अभी हमारे पास में एक प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम के अनुसार हमको ये दिया गया है द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट मतलब पहले रुका हुआ था, अब चलने लगा है। विथ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, its displacement after t second is given in meters by the relation x is equal to 5 plus 60 plus 70 square। ये टाइम के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जा रहा है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी निकालिए। वेलोसिटी 3 सेकंड के बाद कितना हो जाएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कितना होगा, और डिस्प्लेसमेंट 5 सेकंड के बाद कितना हो जाएगा, ये सब हम डिफरेंशिएशन की मदद से निकालेंगे अभी, स्टेप बाय स्टेप। पहला चीज उसने बोला कि क्या दिया हुआ है, पहले ये देखो क्या दिया है हमको, क्या दिया है ध्यान से देखिएगा, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है। डिस्प्लेसमेंट कितना दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है 5 plus 60 plus 70 square। Now how do you write velocity? Velocity को लिखते हो rate of change of displacement with respect to time। So हमने क्या सीखा, अब भूल जाओ, ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है भूल जाओ, डिफरेंशिएशन में वापस जाओ। क्या बोला था, जब तीन चीज का एक साथ डिफरेंशिएशन करना है तो अलग अलग डिफरेंशिएट करना है, तो कुछ भी नहीं है यहाँ पर, तो आप लिखोगे d by dt of 5 plus d by dt of 60 plus d by dt of 70 square। तो आपको पता है d by dt of 5 कांस्टेंट है तो 0, 6t का डिफरेंशिएशन में 6 कॉमन आ जाएगा, हमारे पास बचेगा dt by dt, और यहाँ पर 70 स्क्वायर का डिफरेंशिएशन है, 7 को बाहर निकालो, तो आपको किसका डिफरेंशिएशन करना है, d by dt of t स्क्वायर करना है। अब वापस यहाँ आ जाते हैं हम लोग ना, तो क्या आ गया, d by dx of t dx by dt, यानी कि वेलोसिटी निकाल रहे हैं, तो इसका आंसर आया, देखो dt dt कट गया है ना, dt dt कट के 1 हो गया तो 6 आया, प्लस 7 था, और t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या था, x स्क्वायर होता तो क्या लिखते हैं, 2x लिखते हैं ना, तो 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, तो क्या लिखेंगे हम लोग, 2 into t लिखेंगे, है ना, तो ये क्या आ गया, 6 plus 14 times of t। So what is the velocity? Velocity is given as 6 plus 14t। इतने में नहीं छोड़ा बाबू उसने क्या बोला, उसको बताओ कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी। इनिशियल वेलोसिटी, इसका मतलब t इज इक्वल टू 0। तो आपके पास में जब t इज इक्वल टू 0 तो v इज इक्वल टू 6 प्लस 14t, इसका मतलब 6 प्लस 14 मल्टीप्लाइड बाय 0 विच इज इक्वल टू 6 मीटर्स पर सेकेंड। यानी आपको ये बता दिया कि भैया मेरी जो इनिशियल वेलोसिटी है, द इनिशियल वेलोसिटी इज हाउ मच, इट इज इक्वल टू 6 meters per second। Now he is asking you to find out the velocity। देखो second part of the question देखिएगा, he is asking you to find out the velocity at 3 seconds। कितना seconds के बाद में बोला है, 3 seconds। तो velocity after 3 seconds, how will I find out? That is dx by dt, जब t रहेगा मेरा 3, तो क्या मिला, फॉर्मूला तो मालूम है मुझे, v is equal to क्या मिला, 6 plus 14 times of t, और t की जगह मुझे क्या लगानी है, 3, तो क्या आ गया, 6 plus 14 multiplied by 3। आंसर बताओ कितना आएगा, 14 3s are 42, सो कितना आ गया, 48 meters per second। 3 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी 48 हो जाएगी। आ गई बात समझ में सबको, वेलोसिटी निकालना है, और वेलोसिटी निकालने के बाद आपको डिफरेंशिएशन करना है, और डिफरेंशिएशन जो आंसर आ गया, टी इनिशियल वेलोसिटी निकालना है तो t इज इक्वल टू 0, और वेलोसिटी निकालनी है 3 सेकंड के बाद, तो आप क्या करोगे, आप xt की जगह 3 लगा दोगे। इतनी बात समझ में आ गई सबको, यस बोलो या नो बोलो, जो भी है चलेगा। क्या आएगा,
एक्सेलरेशन निकालना है तो हम क्या करेंगे, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे। वेलोसिटी मुझे पता है कितना है, वेलोसिटी 6 + 14t। तो वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किए तो d by dt of 6 + 14t, so d by dx of 6 plus d by dt of 14t, 6 का तो 0 बेटा, और d by dt of 14, तो मैंने 14 को बाहर लाना है और dt by dt करना है, dt by dt 1, तो आंसर कितना आ गया, 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आ गया समझ में? ये पार्ट समझ में आ गया सबको? एक्सेलरेशन को कैसे निकालते हैं? एक्सेलरेशन को दोबारा वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, डबल डिफरेंशिएशन, डिस्प्लेसमेंट को डबल डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। उसने एक और सवाल पूछा है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट आफ्टर, कितना सेकेंड्स बोला उन्होंने, डिस्प्लेसमेंट आफ्टर, जस्ट 1 सेकेंड, 5 सेकेंड्स। तो 5 सेकेंड्स के बाद डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो x की वैल्यू जो भी थी उसमें आपको 5 लगानी है। x when t is equal to 5 सेकेंड, x की वैल्यू क्या थी बेटा? x की वैल्यू क्या थी? 5 + 60 + 70 स्क्वायर। तो x is equal to 5 + 60 + 70 स्क्वायर। So at t is equal to 5, यहां पर 5 लगा दीजिएगा, 5 + 6 × 5 + 7 × 5 का स्क्वायर। वैल्यू कितना आया देखिएगा, 5 + 30 + 25 × 7, that is equal to 175. So just add this, 210. So it is 210 meters displacement होगा। So ये जो डिफरेंशिएशन हमने किया था, जो बेसिक सीखा, इसी पे कुछ प्रॉब्लम्स हमको करना आ गया, ठीक है, ओके।